Welcome to Baxen Unplugged, where health meets conversation, and every episode is a journey into reality. Welcome to Baxen Unplugged Episode 2. Today we have Dr. Ravpreet Singh, who is a BHMS and MD doctor and an elected member, one of the youngest elected members, in fact, for the Board of Homeopathy System of Medicine. He's been practicing for the last 12 years in New Delhi as a homeopathy doctor. I know Dr. Ravpreet because of his good faith and his popularity within the homeopathy community. He is loved by all. And when I say that with a lot of conviction. I also want to introduce you to Dr. Ravpreet's published book, Not the Milky Way, which teaches us a lot more about lifestyle, health, and milk. Welcome, Dr. Ravpreet. Hi, Dr. Tanya. How are Thank you? I'm good, thank you. Yeah, we are very excited to have you here. Thank you. I'm happy to be here. Thank you for inviting me. Yeah. Yes. So let's just straight hop on to Not the Milky Way, first Yes, of all. sure. I want to ask you as a doctor, Yes. established doctor for the last 12 years, Okay. have written a book Yeah. on how dairy could be one of those things जो हमारी health ruin कर रही है. Yeah. और ये क्यों है सर, आप हमें ये बताओ. So I think it started when I was very young, and I used to have trouble digesting milk. So back then I did not know. I just ignored it, obviously. But when I started practicing homeopathy, I was struggling with thyroid patients a lot and diabetes. Knowing the fact कि ये ठीक हो सकता है and फिर भी वो relapse हो रहा है. So there had to be some underlying cause behind it. So I started researching it, and I have this habit of reading books apart from the course books. So I read a couple of authors who mentioned various things in the process of reversing diabetes. So then I started reading more about it, and one of the factors was dairy in those books. So that sounded a little weird to me, कि ये कैसे हो सकता है. मिल्क तो बहुत सालों से हम पी रहे हैं, सब पीते हैं, कौन नहीं पीता, millions of people. तो सबको क्या डायबिटीज़ हो जाता है? ऐसा भी नहीं होता है. तो जब उसके और रिसर्च स्टार्ट करा तो देन आई फिगर्ड कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ that is the maintaining cause of the diabetes, thyroid and PCOD, which is an epidemic, maybe a pandemic, and we still don't know it yet. PCOS, there a lot of females don't know they still have PCOD. So I think more than 70% of females in our country has PCOD, and they still don't know it yet. What when the news breaks in, ये कब होता है? When they get married and इनफर्टिलिटी हो जाता है, एंड देन दे स्टार्ट फिगरिंग आउट कि क्यों हो रहा है, एंड देन दे कम टू नो कि हमें PCOS है, इसलिए हमें इनफर्टिलिटी है. सो it's been a process of years that that took me to arrive at a conclusion that yes, dairy is causing a lot of harm to us, and I started writing this book in 2018 and completed in 2021-22. So yeah. I mean, sir, years. you've also received the Corona Yodha Award in 2021, if I'm Yes, not wrong. yeah. So you have so much experience. आपके पास इतना experience है, मतलब इतना ज़्यादा. As a youth also, as a young member of the society, as a homeopathy doctor, जो बहुत कम doctors रह गए हैं, जो actual में अच्छी homeopathy practice करते हैं. Yeah. मुझे आपसे पूछना है, आपको मतलब डेयरी के बारे में बोलने से या इतना conviction से you've written so much down, आपने रियलाइज कब किया कि ये एक्चुअल में बहुत बड़ा हार्म है और हर घर में जो डेयरी जा रहा है वो प्रॉब्लमैटिक है? आपने खुद ने अपनी लाइफ में कब रियलाइज किया? I think it's been 10 years I haven't had dairy, so more than 10 years maybe. But back then I just thought I'm lactose intolerant. मुझे लगा कि सिर्फ मुझे मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, so maybe there's something wrong in my stomach that I'm unable to digest dairy. But when I started practicing, I met a lot of people who had this lactose intolerance, and I have even tried treating lactose intolerance in my patients. But now I think it's a blessing in disguise, obviously, कि अच्छा है कि मैं dairy digest नहीं कर पा रहा था. I think it was my body's immunity which was saying कि you should not have dairy.
you should listen to your body. I believe in a fact that we should be listening to our body. When you feel hungry, we should eat. When you feel sleepy, you should sleep. So I think it was in 2014-15, somewhere around, when I started applying these you know rules in my practice. And I was fortunate enough to be practicing with my father, because we have a lot of patients at our clinic. And I just, as an experiment, I tried advising them कि एक बार बंद करके देखो, let's see कि फायदा होता है कि नहीं होता है. And everybody without fail, everybody felt better, reports got better, they got better, and we were able to taper off the medicines completely. So that was a shocking moment for me. आप मुझे ये कह रहे हो कि आपने पीसीओडी में एलोपैथी मेडिसिन बंद करा दी, और डायबिटीज में आपने मेडिसिन बंद करा दी एलोपैथी, जस्ट बाय इन सर्टेन केसेस बाय यू रिवर्स डायबिटीज एंड यू रिवर्स पीसीओडी एंड पीसीओएस. Yes. By just dairy. And medicine, or homeopathic medicine, homeopathic obviously, medicine. and lifestyle, because I think there are two things according to me. One is dairy, and another is maida. So these are the two things that you should be completely off if you have family history of diabetes or thyroid or PCOS or maybe fibroids, any hormonal trouble. So we should be avoiding maida and dairy completely. और क्यों सर मैदा क्यों आ गया इस लिस्ट में? I think maida is because I don't think it has any nutritional value, and it increases your glycemic index, which in turn causes hormonal troubles to your bodies. That's all. It will cause insulin resistance in your body, which is the first step to cause PCOS or maybe thyroid and diabetes. So all these three things are related according to me. And sir, आपके हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपकी क्लिनिक में आता होगा, आपकी आई एम अज्यूमिंग जो आपकी पेशेंट्स पूछते होंगे, पर अगर हम दूध नहीं पिलाए बच्चे को तो हम क्या पिलाएं? Yeah. और अगर हम चाय नहीं पिए सुबह मॉर्निंग में रस के साथ तो हम क्या पिए? Yeah. और अगर हम चीज नहीं डालेंगे पिज्जा और पास्ता के ऊपर तो हम क्या खाएंगे? और अगर हम पनीर नहीं खाएंगे तो हम बच्चे को क्या देंगे? तो मतलब आप मुझे ये बताओ कि आप पालक पनीर, शिमला मिर्च पनीर, ये सब पनीर हमें शाही पनीर बंद करने पड़ेंगे बीइंग पंजाबी? उसमें से सिर्फ पनीर हटा दीजिए, पालक खा लीजिए, साग खा लीजिए. Yeah, so I think I get this a lot, and initially patients don't accept this as a fact कि दूध क्यों बंद करना है, दूध तो बहुत अच्छा होता है. And it's हमारे पेरेंट्स ने हमें पिलाया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें पिलाया, and it makes us strong और ये सब कुछ. I think all of these are myths. And calcium, I think हमने टेस्ट भी करवाया था. I've mentioned the reports in my book also कि it has negligible amount of vitamin D in it, very less calcium in it, and a lot of fat, saturated, unsaturated fats in milk. So yes, it is one of the commonest cause of cardiac conditions also. Dairy, yes. Milk specifically, not the curd or yogurts, but milk and paneer and cheese are the causes. अब योगर्ट को या दही को हम बोलते हैं नेचुरल प्रोबायोटिक. घर में दही जमाते हैं, ऊपर लाल मिर्च होती है ताकि सही सब सही रहे, सब सही से जमे. अब घर में दही तो रोज जमता है, कभी कभी ज्यादा खट्टा भी हो जाता है. बट मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर प्रोबायोटिक क्या ले अगर दही भी नहीं ले सकते? There are various other options, I think. जैसे कि like if we talk about medicines, so there are a lot of, like Yakult is one of the option, but I think that also has a little bit of dairy in it, because I think it has lactobacillus in it. But Introgermina, one of the medicines, is very easily available in the market. But I think natural diet में आपको सब कुछ मिल जाता है. Sir, वो natural diet क्या होती है? Like the fruits. So fruits you can have a lot of fruits. I think juices will help in the immunity building. And I think a lot of good bacteria will remain, and we have a very good gut genome in our body, which means कि आपकी body capable है अपने आप से उन bacteria के survival के लिए और उनके production के लिए. बहुत कम cases में ऐसा होता है. If you get stomach infection, then you need all those probiotics. Otherwise, without probiotic, we can survive. We have been surviving thousands of years without the probiotics. It's just an addition to. It's like having multivitamins, na? So you can get all the multivitamins through the natural sources also. Yes, you can have that. Sir, हमने civilization, as a humanity, as a country, हमने dairy खाना शुरू क्यों किया? Yes, so that was a big question while writing the paper. Why would anyone approach a cow and
try to, you know, Milk it. milk it, right? So that was weird. So none of us, like it's only humans जो दूसरे mammals का milk लेकर पीते हैं उसको. So this happened in the agricultural revolution, at the time of agricultural revolution. So when, you know, initially people like humans were, you know, nomads, you know, they were wandering from one place to another. तो वो जहाँ पे भी अपना थोड़ा सा सेटअप करते थे वहाँ से फ्रूट्स लेते थे, फिग्स लेते थे, एंड वट एवर रिसोर्सेज वर देयर वो अपना खाते थे, एंड दे मूव टू अनदर प्लेसेस. बट देन दे थॉट कि अब सेटल होने का टाइम आ गया, ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली, राइट? सो दे ट्राइड टू मेक कम्युनिटीज बिकॉज इट मेड देम सेफर, यू नो. जब उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, इट वॉज difficult for them to move from places to places with small babies with them, older people with them. तो उन्होंने लगे सेटल होते हैं और यहाँ पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं. तो उन्होंने जब अपनी कम्युनिटीज़ बनाई, अपना क्रॉप्स लगाया, इनिशियली वो क्या करते थे, रिवर साइड पे बनाते थे अपनी कॉलोनीज़, तो क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल होता था. एंड देन दे थॉट कि वी शुड, बिकॉज उस टाइम पे दे यूज टू हंट एनिमल्स ऑल्सो, तो उन्होंने कहा कि इनको पास में बांधना ही शुरू कर देते हैं अपने, एंड जब खाना होगा मीट तो उनको काट के खा लिया करेंगे. एंड देन दे फिगर्ड कि अब इनकी प्रोडक्शन से तो मिल्क भी हमारे पास आ रहा है, तो दे स्टार्टेड मिल्किंग देम कि अब क्रॉप्स ग्रो होने में तो बहुत टाइम लगता है, वो साल में 2 बार क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फूड है जो हमारे पास दिन रात अवेलेबल है. तो उन्होंने उनका वही अपना जो फार्मिंग करनी शुरू करी, एग्रीकल्चर एक डिफरेंट चीज़ होगी, लाइक डेयरी फार्मिंग करनी शुरू करी, एंड देन दे स्टार्टेड मिल्किंग एनिमल्स. उनको लगा तो इससे तो स्टमक भी फुल हो रहा है, पेट भी भर रहा है, तो अब अगर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जैसे वो वीन ऑफ करते हैं तो आप काऊ का मिल्क दे दो. तो उन्होंने इनिशियली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टार्ट किया था इनिशियली ह्यूमंस. तो व्हेन दे स्टार्टेड सेटलिंग इन कॉलोनीज. सर सुनते वक्त इतना अजीब लगा कि मुझे लगा मैं वहाँ पे रिवर साइड हूँ और मैंने ऐसा काऊ बांध लिया, और मतलब इतना अजीब लगा सुनते वक्त कि एक ऐसी सिचुएशन में हमने उसे यूज किया जब हमारे पास कुछ नहीं था, या वी वर नॉट एजुकेटेड इनफ कि क्या यूज करें, और आज तक हम वो यूज करते आ रहे हैं. मतलब जनरेशंस को बेसिकली बुद्धू बनाया गया है. और जनरेशंस बुद्धू बनी गई हैं कि डेयरी खाओ एंड डेयरी पियो. क्योंकि मलाई कितना लोग बोलते थे गुड फैट है, बच्चों को लोग, एंड सर टर्मरिक मिल्क भी हम लोग कितना बोलते हैं. आई थिंक इट गॉट huge boost during the time of industrial revolution in the middle of 1700s or 1800s. so उससे पहले डेयरी बहुत ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ नहीं होता था. मतलब ट्रेडिशनली हमारी कंट्री में तो होता ही था, इंडिया में तो वी स्टिल हैव द बिगेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. बट उससे पहले लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं होता था. आई थिंक इट वॉज ओनली गल्फ एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. US एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिल्क अब शुरू हुआ है, लाइक since past 200-300 years. और सर आपके क्लिनिक में जब कोई आता है तो आप उन्हें जब समझाते हो कि लाइफस्टाइल चेंजेस, आपने मुझे बोला आप उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हो, उनको होम्योपैथी मेडिसिन देते हो, और पहले तो उनकी डेयरी वीन ऑफ कराते हो. हाँ जी. है ना, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, पनीर हो, दही हो, मलाई हो, चीज़ हो, मतलब बच्चे should avoid pasta, pizza with cheese. As less as possible, I would say. So there's a proteolytic enzyme in our body which is called renin. So there are 2 renin in the body. ठीक है ना, एक तो renin angiotensin mechanism में होता है जिसका काम different होता है. Another renin is RENNIN which is also called chymosin. उसका मतलब है कि ये हम सबकी बॉडी में होता है, and but it starts weaning off when we start weaning off from our mother's milk. तो सब बच्चे अभी भी काउ मिल्क थोड़ा सा बेटर डाइजेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एडल्ट्स बिकॉज उनके पास नेचुरल रेनिन उनकी स्टमक में प्रेजेंट है. आफ्टर द एज ऑफ 3 और 5 वो इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग, और बाय द एज ऑफ 8 और 10 वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. तो आपको एक्चुअल बैड इफेक्ट या ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस मिल्क से तब फील होना शुरू होता है जब आप 10 ईयर्स या उससे प्लस हो जाते हो. तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हम बच्चों को क्या दें, तो आई से कि एटलीस्ट इफ़ यू वांट टू गिव मिल्क एटलीस्ट 8 ईयर्स तक दे दो, उसके बाद आप बंद कर दो. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कैल्शियम, इट्स अबाउट कि वो भी बोलते हैं कि कुछ खाने को नहीं है, अब क्या दें, अब सब्जी नहीं खाते बच्चे क्योंकि उनको हैबिट मिल्क की बनी हुई है. तो ऐसे कि ठीक है आप दे दो, बट एटलीस्ट 8 ईयर्स के बाद मत देना. वाई? बिकॉज इफ़ यू हैव अ फीमेल चाइल्ड उनको प्री मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा. लाइक आजकल 8 ईयर्स में 9 ईयर्स में मेंसेस स्टार्ट होते हैं, बहुत जल्दी हो गए हैं. सो दैट्स वन ऑफ द कॉज इज दिस डेयरी. यस, एंड क्योंकि डेयरी में हार्मोन्स होते हैं. यस, ऑक्सीटोसिन ना, ऑक्सीटोसिन इज
is a very good hormone, but when given in the cow in excess amount, it causes hormonal imbalances in your body. और ऑक्सीटोसिन काउ को सबसे ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज जो हम लव हार्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो एक्चुअल में प्रेगनेंसी का मेन हार्मोन होता है जो डिलीवरी में काम आता है। और हम उसको इसलिए पंप कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे ज्यादा मिल्क चाहिए, जो अननेचुरल प्रोसेस है। यस, सो नेचुरली काउ तो देती है, बट आप उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दोगे तो वो और मिल्क प्रोड्यूस करेगी। सो दैट्स व्हाट, यू नो, सबसे पहले बेबी को मदर के पास क्यों लेकर जाया जाता है? सो बेबी को जैसे ही आप मदर के पास लाते हो तो ऑक्सीटोसिन नेचुरली रिलीज होता है। तो वो सेम प्रोसेस काउ में नहीं होता, बिकॉज उनके पास उनका बेबी जाता ही नहीं है। तो जैसे ही वो डिलीवरी करते हैं, बेबी गोज टू द स्लॉटर हाउस एंड मदर से तो मिल्क लेना है, तो उनको फिर और ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। एंड इट्स मतलब एब्सर्ड, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स मिल्क उनसे निकाल ले जाता है। एंड यू नो डेयरी फार्मिंग इज समथिंग, यू नो, वेरी इनह्यूमन थिंग। So I think I know a lot, so I'm not even sure मैं ये सारी बातें बोल भी सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। So yeah. सर प्लीज बोलिए, बिकॉज अगर हम डॉक्टर्स को नहीं पता होगा, और एज वैक्सीन अनप्लग्ड व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज एजुकेट मोर एंड मोर पीपल अबाउट द हार्म्स ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट वी डू इन एवरीडे लाइफ। सर डॉक्टर बख्शी ने मुझे सिखाया था क्लिनिक टाइम पे कि बच्चों को ना जब फ्लेम बन रही हो और जब एक खांसी के टाइम पे बलगम बन रही हो, दूध तो बिल्कुल बंद कर दो। एंड मैंने जब एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। फिर जब आपने भी सेम बात बोली कि डेयरी बिल्कुल बंद कर दो, बच्चों की खांसी ठीक हो जाएगी। तो मतलब जो मदर्स बेसन का सीरा बना बना के बच्चों को खिला रही हैं, यू नो, मैं तो उसी में ग्रो अप हुई हूँ, बिकॉज़ आई थॉट ये नॉर्मल था। बट वो गलत है, पूरा का पूरा गलत है। It affects the phlegm for sure. There's a protein in milk which is called casein protein. वो आपकी phlegm को increase करता है। It's a mucilage kind of protein. तो उसमें one thing is for sure कि अब there is no research backing, to be very honest, इसके लिए, but as an observation मैंने अपने सब patients में, even अपने बच्चों में देखा है कि अगर हम milk देते हैं तो ज़्यादा phlegm बनता है। तो वो तो एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ कॉफ, जब कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है तब तो आपको बंद करना ही करना है। तो वो तो हम जनरली भी बंद करवा देते हैं। तो आई थिंक उसमें आप हल्दी डाल लो, पत्ती डाल लो, वट एवर यू ट्राई, फ्लेम तो बनेगा ही बनेगा। सो ये तो आपने सही बोला। हाँ। सो वो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम इसमें कुछ और ऐड करके दे दें, बट दे वांट टू गिव, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कन्विंस पीपल कि यार ये अच्छा नहीं है। सर आप रिप्लेसमेंट में क्या देते हो ये बताओ? If someone wants, see, if someone is in habit of having cereals in the morning, तो almond milk option है। आजकल बहुत सारे vegan milk आ गए हैं, vegan industry इसीलिए पिकअप कर रही है। You know, there was a time, I think last year, कि US as a country ran out of almond milk. They ran out of almond altogether. हाँ, कैलिफोर्निया आलमंड्स कितने फेमस हैं। Exactly. So उनके पास almonds खत्म हो गए because almond milk की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, you know, specifically की वजह से। आपको आलमंड मिल्क कॉफ़ी देता है और वो दे रैन आउट ऑफ इट। सो there's a boom in vegan industry. Why? Because people have started realizing it कि it has been causing harm, not only to the cows but to the humans also. It's not only about, so a lot of veganism comes from the inhumanity on the animals, right? So I'm all okay for that, but अगर वो हमें भी फ़ायदा नहीं कर रहा तो हम उनको भी नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? तो इट्स अ लूज सिचुएशन। सो हमें भी हार्म हो रहा है, काऊ को भी हार्म हो रहा है, तो व्हाई आर वी रनिंग बिहाइंड इट? सो इट्स ऑल, आई थिंक, बिजनेस, आई वुड से। सो सर मेरे को तो ये भी चीज़ बिजनेस लगी कि आलमंड मिल्क रन आउट हो गया क्योंकि ज़्यादा था। आई एम ट्राइंग टू थिंक दैट मे बी इट साउंड्स अ बिट डिफरेंट ना, कि एक इंडस्ट्री बंद हो रही है तो एक इंडस्ट्री उठ रही है। सर मुझे सिंपल बताओ, आपके घर में अगर बच्चे डेयरी नहीं खाते तो उनकी डाइट क्या रहती है, ताकि बाकी लोग सीखे कि उनको अपने घर में क्या करना चाहिए? सी मोस्टली वेजिटेबल्स। जैसे सुबह से क्या खाते हैं बच्चे? सुबह दूध नहीं पीते स्कूल जाने से पहले? नहीं, मेरे बच्चे दूध नहीं पीते। तो फिर क्या कैसा रहता है? आई थिंक मोस्टली दे स्टार्ट द डे विद फ्रूट्स, एंड आई थिंक जो स्कूल से जो हमें गाइडलाइंस आई हैं दैट यू हैव टू गिव देम अ स्मॉल लंच बॉक्स एंड ओनली फ्रूट्स इन दैट। स्कूल में उनको एक मील मिलता है, घर आके वो नॉर्मल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, रात को दाल रोटी सब्जी खाते हैं। दैट्स द नॉर्मल रूटीन। वी ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट giving them more of dry fruits because, you know, that has a lot of calcium in it, and green vegetables obviously, साग पालक fortunately मेरे बच्चों को अच्छा लगता है तो वो खा लेते हैं green veggies, तो I've been lucky. So कौन से ऐसे सोर्सेज है कैल्शियम के जो मिल्क के अलावा हम
दे सकते हैं अपने घर में अपने बच्चों को और फैमिलीज को? हाँ जी, सो आई थिंक सबसे पहले पहले जो आलमंड मिल्क कंपनीज आती थी ना, वो सिर्फ आलमंड मिल्क बनाती थी. अब नाउ दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पीपल आर लुकिंग फॉर कैल्शियम इन द मिल्क. दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग मिल्क विद द कैल्शियम. तो उन्होंने मिल्क में ही, आलमंड मिल्क में कैल्शियम डालना शुरू कर दिया है. सो और उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो वेरी इजीली. This happened with the milk industry also. 1935 में there were two scientists who proved actually that how much time it takes to digest a pint of milk, like 300 ml glass of milk, and they proved कि वो it takes 6.5 hours to digest just one small glass of milk. और जब आप ये चीज़ वेजिटेबल सोर्सेज से लेते हो, दैट गेट्स easily digested quicker in 3 to 4 hours. So this was proved approximately 100 years back कि milk easily digest तो नहीं होता है. तो then what the companies started doing is कि उन्होंने calcium fortify करना शुरू कर दिया, and they started adding digestive elements in the milk कि वो जल्दी digest हो जाए. तो whenever see if anyone is running a company, तो जो भी उसको hindrance दिखेगा ना, तो will try to cover up कि nobody wants कि हमारी sales कम हो जाए, ठीक है ना. सो सोर्सेज, टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दे हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम इन इट. एंड हमारे कंट्री में हर जगह, इनफैक्ट सैलड्स का तो हर जगह आई थिंक रेज है, इवन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. तो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स है. आजकल जैसे सब लोगों ने चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड जो भी सीड्स का जो कल्चर आ गया, आई थिंक उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है. ओनली एनीवन हैविंग हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स और गॉल स्टोन्स शुड अवॉइड हैविंग सीड्स. अदरवाइज सब लोग ले सकते हैं ऑल दीज थिंग्स. एंड टोफू, so tofu is another option for paneer. तो these book में जो mention किया है वो है, these are the options कि अगर आप, if anyone loves paneer तो वो tofu ले सकते हैं. See initially आपको थोड़ा सा taste में थोड़ा सा weirdness आएगा, इनिशियली होता है, उसके बाद ग्रेजुअली यू नो डेवलप द टेस्ट ऑफ इट, सो वो हो जाता है. तो सर भिंडी में भी कैल्शियम है, आपने ओकरा भी बताया हुआ है. यस, भिंडी में बहुत अच्छा कैल्शियम. आई थिंक भिंडी में इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम. एंड येलो एंड रेड बेल पेपर इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इन वेजिटेबल्स. सो एंड सर आपने अपनी बुक में रिपोर्ट्स भी दी हुई हैं जहाँ विटामिन डी भी कम आया हुआ है मिल्क में. हाँ जो हमारी कंट्री में मैं बोलूँगी मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी कम है. एंड इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एटलीस्ट इन माय क्लिनिक आई सी इट. आई थिंक यू आर आल्सो सीइंग इट इन योर क्लिनिक, विटामिन डी डेफिशिएंसी. I personally give them the Baxin nutraceuticals that they have. I just give them that. We also give that. You also give that. So my question is that vitamin D जब खाने से नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? Sunlight is the only source. I think in food you have very bleak options. बहुत ज़्यादा खाने में vitamin D नहीं मिलता है. And we thought that milk had vitamin D in it. चाहे कम होता है but वो होता है. So what we did was we took 3 samples from 3 different companies, and one was the fancy company of the milk, 2 was the older companies of the milk, and we sent it to a lab by the name of headquarters in Mumbai. So I talked to them. मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको 3 samples भेजूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन सा sample में क्या है, आप मुझे बस उसमें ingredients बताओ. I want to know about calcium, vitamin D and fats. तो तीनों में कैल्शियम इक्वल आया, विच वॉज वेरी लेस, ऑलमोस्ट इक्वल. रिपोर्ट्स हैव शेयर्ड. तीनों में विटामिन डी नेग्लिजिबल आया कि नो रीडिंग ऑफ विटामिन डी, तो ज़ीरो था. सो दिस अ मिल्क विच इज़ पब्लिसाइज्ड और एडवर्टाइज्ड एज कि इसमें बहुत कैल्शियम है और इन नॉर्मल या कन्वेंशनल मिल्क कंपनी से बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी पैकेजिंग करके दे रहे हैं, आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं. सो यू नो वेयर आई एम गेटिंग एट. हाँ, तो हमारी गाय प्योर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाय हैं. सर जो ये प्रीमियम कंपनीज हैं जो आपको बोल रही हैं कि आपका काऊ मिल्क बहुत प्योर है या आपकी प्रीमियम काऊ है, गीर काऊ है, इन पे क्या आप बोलना चाहोगे? आई थिंक टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ मिल्क, हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी हो, कि दे आर मे बी ग्रास फेड, इनमें एंटीबायोटिक्स नहीं लग रहे हैं और द प्रोडक्शन इज़ गुड क्वालिटी.
but you cannot take out hormones from the milk. And the basic question arises कि अगर हमारी बॉडी में रेनिन ही नहीं है तो आप किसी भी काओ या बफलो का मिल्क ले लो, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल टू योर बॉडी. स्पेसिफिकली कैसीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती. हमारी बॉडी वो प्रोटीन ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकती. वी डू नॉट हैव एंजाइम्स टू ब्रेक कैसीन इन अ बॉडी, विच इन टर्न बिकम्स कार्सिनोजेनिक. तो कैसीन इज़ अ कार्सिनोजेनिक प्रोटीन, उससे कैंसर भी हो जाता है. एंड इट इज़ द मैक्सिमम पार्ट. 80% ऑफ प्रोटीन in the milk is casein protein and 20% is whey. Whey is a good protein. It's easily digestible. Our stomach accepts it, in a better thing. तो वो casein तो is very harmful, very harmful. तो मतलब वे जो प्रोटीन पाउडर्स में होता है वो, हाँ जी. It's according to me it's safe. If anyone who's working out, तो वो अगर हमसे आगे पूछे थे कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए तो एंड वे लेना है तो हम ऐसे ठीक है, वे इज़ अ गुड प्रोटीन. बट उसमें कैसीन भी लेते हैं कुछ लोग हु वांट टू बल्क अप. तो कैसीन प्लस इसलिए फैटी क्या होता है कि अगर आप कैसीन लेते जाओगे, बहुत लोगों को रात को दूध पीने की आदत होती है. अब जो लोग रात को दूध पीते हैं वो ज़्यादा फैट बनाते हैं अपनी बॉडी में. और इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू नो एनीवन हु इज़ इनटू जिमिंग, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनको कैसीन प्रोटीन दिया जाता है. वो आपको रात को लेके सोना है. इफ़ यू वांट टू बल्क अप, आपको बीफ डप होना है, तो आपको कैसीन रात को लेना है. एज ए डॉक्टर ये हेल्दी है, ये बीफ अप होने का कल्चर, ये मतलब लाइक बिल्कुल बड़े बड़े आर्म्स डोले शोले कल्चर हेल्दी है? आई मीन इफ यू आर डूइंग इट नेचुरली देन इट्स ओके. लाइक एंड नेचुरली मतलब अवॉइड स्टेरॉइड्स, अवॉइड टू मच ऑफ प्रोटीन्स इन योर बॉडी. जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है. लाइक क्रिएटिन बहुत लोग लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट्स हार्मफुल. सो बट दे क्लेम कि नहीं बहुत सेफ है, बड़ी सारी रिसर्चेस हैं. आई थिंक मेडिकली आई डोंट एडवाइज एनीवन टू टेक क्रिएटिन. And whey is the only protein I believe ki is okay to take, in my opinion. Well, you might get different opinions from different doctors, but in मेरे लिए मुझे लगता है ठीक है. So मुझे एटलीस्ट पिछले 10 मिनट से पहले ये लगता था कि विटामिन B12 एज अ डॉक्टर आल्सो आई यूज्ड टू से डेयरी ले लो, विटामिन B12 बढ़ जाता था. एंड सीरियसली आई हैव सीन कि जो डेयरी लेता है बढ़ जाता है, B12 बढ़ जाता है. और इंटरनेट पे भी जाओ तो विटामिन B12 का नेचुरल सोर्स इज डेयरी. चीज खा लो. और नॉन वेज इज योर सालमन होगी, आपकी फिश होगी, चिकन, मटन. सर अब हम क्या करें? अब हम डेयरी नहीं ले सकते. और वेजिटेरियंस हमारी कंट्री विटामिन B12 डेफिशिएंसी है. इंडिया इज नाउ करंटली रनिंग एट विटामिन B12 डेफिशिएंसी एट अ रेट ऑफ एटलीस्ट 70%. राइट. सो हाउ डू वी करेक्ट दिस विद नेचुरल सोर्सेज? ये बताओ. सो नेचुरल सोर्सेज में वी हैव डाइटरी ऑप्शंस, जैसे कि अगर हम जैसे कि अचार जैसे बताया आपने कि जिसमें भी यीस्ट होता है, आई थिंक दैट हैज़ विटामिन B12. अगर आपको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको अचार भी अच्छा नहीं लगता, इफ़ यू कैन नॉट हैव सावरडो ब्रेड आ गई, जैसे नॉर्मल ब्रेड डेयरी होता है, सावरडो ब्रेड में आप वो भी यीस्ट से बनता है, तो वो वन ऑफ द ऑप्शन है. तो अगर आप स्विच कर जाएँ उन सोर्सेज पे तो आई थिंक यू आर गुड टू गो. बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं खाना है तो आई थिंक मल्टीविटामिन्स आर दी लास्ट ऑप्शन. अगर आपको इफ यू फील कि बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है तो आप मल्टीविटामिन्स आप लेते हो मल्टीविटामिन? नो आई डोंट. अभी तक जरूरत नहीं पड़ी. अभी जरूरत नहीं पड़ी. सो मतलब विदाउट डेयरी आल्सो आप नॉन वेजिटेरियन हो? वेरी लेस. सो इवन विद अ वेजिटेरियन डाइट यू आर एबल टू मेंटेन अच्छी विटामिन B12? यस. सो या जिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो आपने बताया, इन सब में होता है. हाँ जी. विटामिन डी मेरा लो आया था तो आई हैड टू टेक सप्लीमेंट. आई थिंक दिस वाज अ कपल ऑफ इयर्स बैक बिकॉज वी डोंट गो आउट इन द सन एंड और कोई ऑप्शन है नहीं. डेयरी तो मैंने 10 साल से नहीं लिया तो डिप्लीट तो होना ही था. अच्छा सर, अब आप एक और चीज़ बताओ. अगर आपके बच्चों ने डेयरी नहीं ली, मुझे ये भी पता है दैट यू एजुकेटेड मी एज अ डॉक्टर ऑन वैक्सीन्स. ये एक हॉट टॉपिक है जो हमारी आई थिंक पूरे कंट्री के लिए. आई नो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. एज अ होम्योपैथी डॉक्टर यू आर एन एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर हु हैज सीन काउंटलेस पेशेंट्स विद काउंटलेस वैक्सीन्स. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन वैक्सीन्स? Personally, I don't believe in vaccines because I don't trust them. I know it started off really well, like smallpox vaccine. So according to me, मुझे लगता है कि अगर कोई वैक्सीन इफेक्टिव है एक्चुअली तो it should show results in 10 years, maybe 20 years, 30 years, 30-40 साल में. like smallpox vaccine start हुआ आपका 1940s में, like during the time of Second World War, and the last case of smallpox vaccine was in 1978 in Africa.
it completely wiped off from the face of the earth the smallpox. So that is an effective vaccine. वो मेरे को समझ में आता है कि आपने लगाना शुरू करा, वो हुआ ही नहीं. आजकल क्या हो रहा है कि चिकन पॉक्स वैक्सीन लगती है फिर भी हो रहा है, मीजल्स वैक्सीन लगती है फिर भी हो रहा है, MMR है ना, सो टाइफाइड वैक्सीन सबको लगती है फिर भी हो रहा है. एक बार नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है. इन्फ्लुएंजा लगती है फिर भी हो रहा है. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग दैम? पहला पॉइंट है कि वो इफेक्टिव नहीं है इन माय ओपिनियन. दूसरा पॉइंट है, अगर वो इफेक्टिव नहीं भी होती, आई वॉज ओके विद इट, बट जब वो साइड इफेक्टिव हो जाती है ना, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो वो इफेक्टिव नहीं है. अगर वो इफेक्टिव ना भी होती तो आई वॉज ओके विद इट, बट वो साइड इफेक्टिव है. और साइड इफेक्टिव मतलब कुछ केसेस में इतना ग्रेव है कि इट इज कॉजिंग ऑटिज्म. And once, so if you meet anyone, so it's a very sad reality कि when you meet a parent who thought I was doing my best for my kid, कि वो लेकर जा रहे हैं पेनलेस वैक्सीन लगवा रहे हैं कि हमें आप 2000 की वैक्सीन को 5000 में लगा दो, वी डोंट केयर अबाउट मनी, बट वो पेनलेस होना चाहिए बच्चे के लिए. एंड विद इन अ मंथ और विद इन 15 डेज आपको रियलाइज़ होता है कि आपका बच्चा आई कॉन्टैक्ट करना छोड़ रहा है. वो पहले मम्मा पापा बोलता था, वो बोलना बंद कर रहा है, and has become suddenly aggressive. So that is a life changing moment for you. And I've seen patients, मतलब parents crying in front of me कि हमें पहले क्यों नहीं बताया किसी ने. It's horrifying. मेरे पास अभी भी 7 या 8 केसेस चल रहे हैं ऑटिज्म के, जिनको स्टार्ट ही, who have no family history for the information of autism in their family, स्टार्ट ही 2 साल 3 साल में हुआ. और उन 7-8 लोग में तो 2-3 पेरेंट्स ने खुद बोला कि वी नोटिस्ड इट कि उससे पहले हमारा बच्चा नॉर्मल था, बाद में एकदम से एग्रेसिव हो गया. एंड आई थिंक उसके बाद तो एवरीथिंग चेंज. तो अब वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, दे आर गोइंग टू प्लेसेस कि हमारा बच्चा नॉर्मलाइज हो जाए. आई नो कि 100% शायद नहीं हो पाएगा, बट अगर वो 60-70% भी हो जाता है, इट विल टेक 10 years फॉर देम, 10 years ऑफ ट्रीटमेंट, कि उनका बच्चा एक नॉर्मल पेस पे आए. वो नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकता, वो नॉर्मल प्लेग्राउंड नहीं जा सकता. एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर दैट. एंड यू नो, इंडिया के बाहर आई थिंक अवेयरनेस ज़्यादा है. US में पेरेंट्स हैव डेलिबरेटली स्टार्टेड कॉलिंग आउट टू द वैक्सीन कंपनीज कि आप मैंडेटरी मत करो, इट शुड बी अ पेरेंट्स कॉल. इंडिया में अभी भी मैंडेटरी, आई थिंक ये रूल चेंज होना चाहिए. सर मतलब मैं तो अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मतलब 2-3 साल में, तो अभी आप तो 12 साल पुराने प्रैक्टिशनर हो, मैं तो, मेरे को तो 1 साल हुआ है. मैंने तो अभी आई ग्रेजुएटेड, मैंने अपने वैक्सीन शेड्यूल में पढ़ा है. इंडिया में हम पढ़ते हैं ना कम्युनिटी मेडिसिन में, कि कम्युनिटी मेडिसिन में आज तक जो शेड्यूल लग रहा है हमें, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 12 इंजेक्शंस. एंड हमें रट्टा मारा जाता है. हम एज डॉक्टर्स उसको लिखते हैं, हम एज डॉक्टर्स एग्जाम में ये इंजेक्शंस लिखते हैं कि ये शेड्यूल है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है. सर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इंजेक्शन लगता है वुमन को, टेटनस लगता है, देयर इज फ्यू अदर्स एज वेल. उस पे क्या ओपिनियंस है आपके, वो लगाना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी टेटनस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन. टेटनस अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी. सो आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम नॉट अगेंस्ट वैक्सीनेशन बेसिकली. आई वांट टू क्लियर दैट आउट. आई एम जस्ट अगेंस्ट द कि इतना ज़्यादा नॉट इफेक्टिव वैक्सीन को रोक देना चाहिए. आई मीन कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और जो क्वेश्चन कर रहा है उनके क्वेश्चंस दबा दिए जा रहे हैं. दैट्स ऑल माय पॉइंट इज कि, एंड यू नो व्हाट, कि रिमार्केबल थिंग इज कि जो फर्स्ट सीड ऑफ वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं है, आई लर्नड इन दिस कॉलेज in vaccines over the medical college. One of our professors in a random class, उन्होंने हमें बोला कि वैक्सीनेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज अ फेलियर, एंड वी लाफ्ड इट ऑफ. मैंने कहा सर क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया लगाती है, 100 साल से लगा रही है, तो ये तो आप गलत बोल रहे हो. तो ही सेड कि आप पढ़ो इसके बारे में एंड टेक योर ओन डिसीजन. व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली कॉलेज के बाद हमने, यू नो, जब आप सीट पे होते हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कॉलेज में भी था, हाँ ठीक है, यू नो, बात चली गई. When we sat at the clinic and then I started realizing कि अब लोग हमसे आके पूछ रहे हैं कि कौन सी वाली वैक्सीन लगवाएं. तो then I started studying कि यार ये तो आंसर करना पड़ेगा, तो I have to do my homework. जब मैंने पढ़ना शुरू करा, then I got a lot of data which was against vaccination. and कभी कभी ना लोग थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड भी हो जाते हैं कि यार नहीं लगाना तो सारा ही नहीं लगाना.
नहीं ऐसा नहीं करना है, सर जो तो कौन अच्छा सी है। लगाऊं और कौन सी नहीं लगाऊं? आई थिंक टेटनस इज अ गुड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स तो अब लगती नहीं है। आई थिंक इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस तो डेफिनेटली गो फॉर हेपेटाइटिस। इफ़ यू डोंट हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस आई थिंक उसकी भी ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज अनलेस आजकल सिरिंजेस ये रीयूज़ तो होती नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं होगा आपको। और अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो और आप पे सिरिंज रीयूज़ हो गया है तो वो फिर भी हो जाएगा आपको। सो इट्स नॉट अ प्रोटेक्शन बेसिकली, बट स्टिल यू कैन गेट इट डन। बहुत ज़्यादा ग्रेव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है उसके। बाकी सब कुछ आई थिंक जो स्पेसिफिकली वायरस की वैक्सीन है ना, ये आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इन्फ्लुएंजा मनी। वाली? या उससे कुछ होता नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई हैवंट सीन एनीवन सेइंग कि हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाया और हमें बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखा, हमें वो नहीं हुआ। लाइक कोविड में भी मतलब all of us had to get it done because we had to travel basically, but covid vaccine I think US ने ये प्रूव किया एक रिसर्च में कि पहले उन्होंने वैक्सीन लगाना शुरू करा कि इट्स आपको कोविड होगा नहीं, बट फिर भी कोविड हुआ तो देन दे सेड कि अच्छा ठीक है, इम्पैक्ट कम होगा। हाँ इम्पैक्ट कम होगा, नंबर ऑफ डेथ्स रिड्यूस हो रही हैं। बट यू नो व्हेन रिसर्च इस टॉपिक पे तो 51% ऑफ डेथ्स वर ऑफ वैक्सीनेटेड एंड 49% वाज ऑफ अनवैक्सीनेटेड। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट अगर वो 50-50 भी होता तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गिविंग वैक्सीनेशन ऑल टुगेदर। सो अगर वो सेम भी होता, इनफैक्ट अब मतलब इट डजंट एड अप। मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं ना तो मुझे लगता है कि ठीक है आप लगाने वाले लगा भी रहे हैं, बट जिसको साइड इफेक्ट होता है आप उनसे पूछो। मतलब मे बी वी वर लकी वी आर स्टिल सिटिंग है। तो आप पता है सही बोल रहे हो क्यों? बिकॉज हमने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन स्टडी करी थी डॉक्टर बख्शीज वैक्सीन्स क्लिनिक्स में, हाँ जी, एंड यू वोंट बिलीव इट, 20 साल पहले ठीक किया हुआ सोराइसिस इंजेक्शन लगाने के बाद वापस। साइनसाइटिस बिल्कुल ठीक है, 10 साल से कुछ नहीं हुआ, होम्योपैथी दवाई ले रखी है जी, सडनली आ गया। एंड डॉक्टर बख्शी ऑब्जर्व्ड इंसोम्निया शुरू हो गया। पेशेंट्स हिस्ट्री नहीं फैमिली में इंसोम्निया की, रात को नींद नहीं आ रही जी। वैक्सीन जब से वैक्सीन लगाई, पोस्ट वैक्सीनोसिस जो हमें पढ़ाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी, पोस्ट वैक्सीनोसिस ये चेंजेस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एंड मुझे बोलना नहीं चाहिए बट हमने डर के वजह से, मैंने तो डर के वजह से लगाई थी, बिकॉज मैंडेट हो गया था कि आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। एंड हमारे में अंदर जोकोविच वाले गट्स तो है नहीं जो हम पूरे चैंपियनशिप छोड़ दें। सोर्सेज भी नहीं है वैसे, सोर्सेज भी नहीं है, एग्जैक्टली। एंड इतनी हिम्मत भी नहीं है ये बोलने की कि हाँ एक बार कोविड हो जाए तो फिर वी कैन टेक इट, हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे बट एक बार कोविड हो जाए विल बिल्ड इम्यूनिटी। ये भी बोलते हैं ना लोग कि नो लेट अस हैव कोविड, बिल्ड इम्यूनिटी एंड नॉट गेट द इंजेक्शन। मैंने तो ये भी सुना है डेवलप्ड कंट्रीज में दिस इज द थर्ड और द फोर्थ टाइम दे गेटिंग कोविड वैक्सीन एज अ बूस्टर। तो डजंट मेक सेंस टू मी। मतलब वेरी ऑनेस्टली बूस्टर तो आई थिंक और भी हार्मफुल है। सो देयर वाज एन इंसिडेंस, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज़ अ डॉक्टर आल्सो, उनके फैमिली रिलेटिव में किसी को कुछ कार्डियक कंडीशन हुआ एंड दे वेंट टू द हॉस्पिटल एंड the HOD cardiologist of that hospital said कि अच्छा इनको बूस्टर डोज लगाया क्या? तो they said कि हाँ जी हमने तो लगवाया है। तो he said अच्छा फिर तो हो सकता है कि ऐसा हो गया। तो they questioned because being a doctor he said कि सर आपको पता है तो you should say it out in open। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ओपनली नहीं बोल सकता, मैंने आपको बता दिया, आप मेरे पास आए हो, मेरे फेथ पे हो, तो मैंने आपको बता दिया कि शायद हो सकता है उसकी वजह से। डॉक्टर कम्युनिटी की एक्चुअल ट्रूथ है। या सो दिस। अच्छा तो आपने अपने बच्चों को कौन सी इंजेक्शन लगाई ये बताओ? I can't mention the names, but ये कि I've done it very selectively. Not all of them obviously because I know जिसका प्रिवेंशन मैं खुद दे सकता था, like you know homeopathic prophylaxis। हाँ मैं इसका भी क्वेश्चन है, होम्योपैथी प्रोफाइलैक्सिस फिर क्या होती है, आप कैसे देते हो, हाउ डिड यू डू इट घर में, आपने कैसे किया फिर? So like chicken pox, अब see when we talk about viruses ना, तो viruses का लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तो आपको डिजीज होकर ही मिल सकता है। like कुछ हमारी इम्यूनिटी रिमेंबर करती है, दे हैव अ मेमोरी। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, दे डोंट रिलैप्स, वेरी रेयर चांसेस कि वो रिलैप्स होगा या सेकेंड टाइम होगा। अक्यूट वायरसेस जो होते हैं जैसे कोविड हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया, इनका इम्यूनिटी आई थिंक एंटीबॉडीज जो बनता है, आई थिंक दे कैन रिमेंबर इट फॉर 2 months, मे बी 3 months, मे बी 6 months। तो जब भी कुछ चिकन पॉक्स का सीजन आता है तो वी गेव आवर किड्स वैरोलिनम 200 एंड आई डिड दिस पर्सनल एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्कूल, एक ललित महाजन SPM स्कूल है वसंत विहार में। वहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों को वैरोलिनम 200 दिया था जस्ट बिफोर दी फ्लू सीजन, चिकन पॉक्स। ओह चिकन पॉक्स, यस।
So none of them got chickenpox in that season. और उसके बाद we did not follow up. Obviously हम अपना clinic पे busy हो गए. I think this happened in 2017 or 16 we did that. तो I have an Excel sheet of the हाँ the कि kids. कौन से वाले होम्योपैथी मेडिसिन देने चाहिए किसके अगेंस्ट. हाँ जी, नहीं उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूव किया कि जितनों को हमने दिया एक को भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ. सो आई थिंक आई शुड वर्क मोर ऑन दिस. तो अभी तो टाइम नहीं है. आई थिंक करेंगे इसके ऊपर और काम. आई थिंक होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस इज वेरी इफेक्टिव, बट ऑब्वियसली वो आपको उसमें भी मतलब जैसे आप बूस्टर डोज है, बट उसमें बूस्टर शॉट नहीं है. आपने सिर्फ 2 ड्रॉप डालने हैं, जस्ट लाइक पोलियो ड्रॉप्स. एंड आप ड्रॉप्स डालो. आई थिंक वेरुलाइनम 200. वेरुलाइनम 200. और मीजल्स के लिए क्या दिया था अगर बच्चों को? Melandrinum, I prescribe Melandrinum 200, but I think different doctors prescribe different. कुछ को मैंने सुना arsenic भी देते हैं, and one of our professors told arsenic iodide also for measles. अच्छा, और कोई चीज के लिए प्रोफाइलैक्सिस, होम्योपैथी प्रोफाइलैक्सिस? आई थिंक अभी जो प्रूवन है मेरे नॉलेज में, आई थिंक ये 2 हैं जो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अगर आप ले लोगे तो आपको नहीं होगा. दैट्स फॉर श्योर. इनफैक्ट मैं खुद भी लेता रहता हूँ, बिकॉज कभी होता है ना आप फीवर चेक कर रहे हैं, यू रियलाइज तो पेशेंट को चिकन पॉक्स है, तो आपको, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं हुआ है, तो एट दैट टाइम आई ऑब्वियसली आई मेक श्योर कि आई वॉश माई हैंड, सैनिटाइज करके आई टेक अ ड्रॉप ऑफ वो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली मी. मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे बच्चों को भी हो सकता है. तो वेरुलिनम आई टेक वेरी फ्रीक्वेंटली. 2-3 महीने में 1-2 रोज में ले लेता हूँ. तो अभी तक तो सेफ चल रहा है. और HPV वैक्सीन. हाँ जी. HPV वैक्सीन अगर आपको भी पता है that lot of women are encouraged to have the HPV vaccine. I was encouraged by my pediatrician at the time of 14-15 when I was 14-15. A lot of my friends got it done. It was an ego boost for everybody. I got HPV. Did you? And there's a lot of road on the internet as well. I didn't get it done. Personally, I just didn't, because my father, being a homeopath, said that maybe you don't need it. What is your opinion on the HPV vaccine for women that's coming up for cervical cancer? Yes, so I think you can advertise anything for anything, but I don't personally believe it is effective. बहुत सारी not even vaccines, बहुत सारी medicines market में इसी उसके साथ launch होती हैं कि oh it's a revolution. But I don't think there's anything like that कि वो revolution. जैसे कि small pox की बात करें, जब वो eradicate हुआ, then it became a revolution. वो पहले आप नहीं बता सकते. You still don't know. You might be having data कि इतने % को affect कर रहा है, इतने % को नहीं कर रहा है, but उतना % तो वैसे भी disease हो रहा है. और there is how will you be able to differentiate between कि किसको हुआ तो किस वजह से हुआ. मतलब I don't see sense in it. मुझे नहीं लगता कि वो effective है. That's just my personal opinion. So I would never recommend anyone getting that in my clinic. मैं अपनी family में तो I would not recommend anyone. So just like sir ने आपको बोला कि maybe we don't need it and unnecessary medication का ज़रूरत नहीं है. I think the question arises कि जब वो हो जाता है तो हमारे पास उसका treatment नहीं है क्या? So if we have a good treatment, why vaccinate? अब वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला जो होता है ना, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता. एंड आप हर जगह वो करते रहोगे तो ब्लाइंडली नहीं करना है. यू हैव टू बी लॉजिकल अबाउट इट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सबको अच्छा चाहिए, बट वो प्रिवेंट कर भी रहा है नहीं कर रहा, वी डोंट नो. अब जैसे मीजल्स का वैक्सीन क्यों लगाते हैं? मीजल्स इज नॉट फेटल. किसी को हो जाएगा तो देयर आर नंबर ऑफ डेथ्स आर नॉट इवन 1%. लाइक इट्स नेग्लिजिबल. इवन इन चिकन पॉक्स जब हो जाएगा इट गोज ऑफ within a couple of weeks, अपने आप चला जाता है. Why a chicken pox vaccine? In fact, आप वैक्सीन लगा के उनको herpes होने के चांसेस बढ़ा रहे हो. हाँ जी. So that's a problem. जिनको नहीं पता, chicken pox virus doesn't go out of your body. It stays in your body dormant. और जब वो वायरस से वापस कांटेक्ट आता है तब herpes zoster के नाम से ये वायरस आता है, जो एक्चुअल में खतरनाक होता है. बिकॉज जब herpes होती है, वो जब herpes neuralgia में कन्वर्ट होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स आई से. दैट्स एक्चुअली हाउ माय फादर मेट माय मदर आल्सो, बाय द वे. या सो माय मम कॉन्ट्रैक्टेड herpes from her grandmother because somebody got chicken pox and then they got it back again. And she came to my father for the treatment of the blisters. So, you know, because they were completely round circle में होते हैं, छोटे-छोटे blisters. And homeopathy से ठीक हो गया. And then they got married and then we came. वो अलग कहानी है. But yeah, you're right. Yes. So we are increasing chances of herpes happening in our body. Yeah.
And even when we give the live polio vaccine, so polio has been advertised as another revolutionary vaccine. So I think there's a doctor in Calcutta who opened up on a public forum and said कि even polio vaccine is not effective or was not effective. दो बूंद जिंदगी की. हाँ, so see, even the companies don't say कि it's 100% safe. How can the celebrities endorse it at कि हाँ 100% safe आप ले लो. Companies के आप वैक्सीन का अगर आप वो पैकेट खोलो उसके पीछे there's a long list of side effects. तो कंपनी खुद बोल रही है कि ये 100% सेफ नहीं है, तो हाउ कैन यू एडवर्टाइज दैट कि 100% सेफ है, और वो भी बहुत सिलेक्टिव सिम्टम्स होते हैं. सो देयर इज अ पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल बाय द name of VAERS, VAERS, so vaccine adverse event reactions, something like that. And there is another law passed in 1988 in US, which is by the name of NVIX, which means that National Vaccine Injury compensation scheme. So till now, I think 2019, I think सबसे अच्छा काम वैक्सीन के ऊपर जो किया है ना, Dr. Isaac Newton, I have to mention the name Dr. Isaac Golden. He's an Australian doctor. उन्होंने जो काम किया है वैक्सीन के ऊपर, like he's told everything about. तो his take was very logical. उसने बोला कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि कितने claims हुए हैं वैक्सीन इंजरी के, और कितने claims कंपनीज ने सेटल किए हैं, which means they lost the case in the court. तो till 2019, $4 billion they have lost to people जो वैक्सीन इंजर्ड हैं, which means कि vaccines are not 100% safe. तो why are they losing cases अगर वो 100% safe है तो obviously they delete data, obviously they modify the researches. A lot of things are going on जो normal लोग तक ये informations नहीं पहुँचते. I think this should be out in public portal. जो अब होगा. Let's hope so. नहीं, I think ये इन सारी चीज़ों से हमने इतना सीखा है. आपकी स्टडी वैक्सीनेशन के ऊपर, डेयरी के ऊपर, स्पेशली हाउ डेयरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड थायराइड, PCOD, डायबिटीज, ये सब रिलेटेड है. जी. एंड आज से पालक पनीर बंद घर में और टोफू पनीर शुरू. ओनली पालक. ओनली पालक, सॉरी ओनली पालक. And that is radical. I think we are definitely going to change a lot of our dietary habits after this. Let's hope. And hopefully the vaccination habits as well. That most of us have. I'm just saying कि people should question the governments and government should take action. See, government is not a doctor. I'm not expecting them to suddenly think of this, but people like us should tell them कि you should question companies कि जो actually effective है वो आप लगाओ, no problem. But जो not effective है उसको रोक दो. There's a list of 47 vaccines at this point of time. Kids get 45 to 47 shots in their body. India, yeah. 47 vaccines, 45 to 47. So जिसमें से I think 2-4 effective हैं या 5-6 effective होगी या और ज़्यादा effective होगी, but not 47 for sure. सारी effective नहीं है. So we need to learn and we need to spread the knowledge, I think so. Thank you, Dr. Ravpreet Singh, for educating us. Dr. Ravpreet Singh is an established homeopath in Delhi, yes. And his practice has a massive following. I myself am going to learn so much from him. So see you soon, Dr. Ravpreet, and thank you for educating us, so many of us, about so much about health. Thank you for calling me. Thank you. Bye. अच्छा लगा ना अपनी हेल्थ के बारे में जानकर? ऐसे ही हेल्थ के रियलिटी चेक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें.